पवित्र पांजाधारी ऋतिक वृंद, कर्मी मंडली, सब गुरु भाई माँ, सबको मेरे गुरु जय गुरु, आंतरिक जय गुरु. Ladies and gentlemen, I was told there are students from KIMS and KISS, medical college students, medicine students and engineering students. It's a great privilege to be here with the invitations of Mama Bihari Bhai and Vishwaranjan Bhai. And I'm going to share a few of my experience, how I became transformed from devastations to an concentric manner. It was exactly 10 years ago. At the same time in September, I had a short visit to Bhubaneswar in the September month of 2009. I was going through a lot of setbacks in my life, lots of turmoils, hailstorms, thunderstorms in my life. I was thinking why all the hell difficulties are going, I have to face all the difficulties in my life. Why I am not able to overcome all the difficulties? And I started with my father's scooter. I started driving from my home place, Baramunda. I started driving towards Cuttack. I had just crossed the Utkal University, the gate at Bani Vihar. It was around evening time. It started drizzling. And on the way I was thinking, why all the wrong things are going through me? I'm also a human like you. I also have likes and dislikes. And I'm not a inert object. I'm also a manifestation of some automations. I also have likes and dislikes like you. I also have pains and pleasures that you feel. And I also have emotions and sentiments that you all have go through every day. I also had a dream to pursue, a desire to succeed in my life, career and profession. And at the same time, I had a craving to succeed in life. जब ऐसे सोच के जा रहा था, and suddenly it started drizzling, and I could not move a movement forward. I stopped below a tree. I was thinking what to do, and immediately it started pouring. I thought, where to go? I just had crossed around 200 meters away from the university gate, and all in a sudden, since I was looking for shelter, I looked on the left and right. On the left hand it was highway, so I looked at my left. I saw a white building. Having no options, I walked down towards that white building. Near the gate, I found an old man with dhoti Punjabi sitting in a plastic chair. He asked me, "From where are you from?" I said, "I am from Odisha. I have come from Guwahati." "Okay, you are new?" "Yes, I am new." So, "Do you know this building?" "No, I have no idea." "Why you are getting wet? आप क्यों भीग रहे हैं? आप अंदर जाइए, ये प्रार्थना का समय है, ये सत्संग मंदिर है, ठाकुर श्री अनुकूल चंद्र जी का मंदिर है." आई हैड नो आइडिया किस चीज़ का मंदिर है. आप अंदर जाइए, प्रार्थना का समय है, आप प्रार्थना गृह में जाइए, बहुत आनंद होगा. अब एक बार हम अंदर आए हैं और प्रार्थना में बैठे, तो हॉल में बहुत प्रार्थना शुरू हुआ. हम बहुत लोग बैठे थे, बहुत आनंद महसूस हो रहा था. ठंडी हवा चल रही थी. प्रार्थना शेष हुआ. पुजारी जो है दिया लेके प्रणाम करने गए. पीछे 30-40 लोग, मुझे अभी भी वो पिक्चर याद है. पीछे 30-40 लोग गए. अब मन में थोड़ा भय है. कोई भी दैव स्थान मंदिर में जाने से खुद का जो भूल वो महसूस होने लगता है. मेरे मन में बहुत भय था. शायद मेरे में बहुत भूल चल रहा था. मैं पीछे गया. उनके सबसे लास्ट में मैं था. मुझे अभी याद है, ठाकुर जी के मंदिर से जब चलने लगे, धीरे धीरे बारिश बंद हो गई थी. आंधी से, तूफान से हवा चल रही थी. और मेरा नज़र था ठाकुर जी का जो दिया प्लेट में लेके जा रहे थे, ग्लास का कवर था, उसमें मेरा नज़र था. सबसे लास्ट में था. जैसे ही टांग लिए, एक हल्की सी हवा आई, वो फूल नीचे गिर गया. मेरे मन में लगा कि शायद मेरा जो कष्ट के लिए है, ठाकुर जी का फूल मेरे लिए गिरा है.
मुझे इच्छा हुआ, हे ठाकुर जी, अगर आप ईश्वर है, ये फूल के ऊपर किसी का पैर गिरना नहीं चाहिए। आप विश्वास मत कीजिए, 40 लोग वहाँ क्रॉस करके गए, किसी एक का पैर उसमें गिरा नहीं। सब लोग चले गए, मैं वहाँ नतमस्तक करके प्रणाम किया, वो फूल को पॉकेट में रखा, फिर दौड़ते गया, देखा कहाँ चले गए वो लोग। उनके साथ साथ श्री वर्मा के मंदिर में गए, वहाँ प्रणाम किए, फिर नेक्स्ट प्रणाम करके मैं बाहर आया। प्रार्थना शेष हुआ, सब लोग चले गए। मेरा मन में आया, बाहर तो आया, मेरे मन में आया कि अगर एक दिन प्रार्थना करने में इतना अच्छा लग रहा है, मन में इतना शांति महसूस हो रहा है, हर रोज़ प्रार्थना करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं आया घर में, मेरा दोस्त बाल्य बंधु है, उनको कैपिटल हाई स्कूल में पढ़ते थे, उनको फ़ोन लगाया कि अगर ऐसे ऐसे गया था। वो बोले आप कहाँ गए थे? मैं क्या सत्संग मंदिर गए थे, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का मंदिर है, बहुत अच्छा लगा। रोज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, कोई एडमिशन लेना पड़ेगा? बोले नहीं, रोज़ करने के लिए ठाकुर जी का जो सत मंत्र है वो लेना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। मैं क्या कौन दे सकता है? बोले ऋतिक दादा ही दे सकते हैं, जो उनका आशीर्वाद है वही दे सकते हैं। हम अगले दिन नहीं खा पी के पूरा दिन ढूंढते गए। एक वॉकिंग डे था, हर जगह में गए, दिन दोपहर 2 बज गया, कहीं कोई नहीं मिले। मन में एकदम अजीब सा एक भाव चल रहा है, नहीं मैं आज लेके रहूँगा। 2:30 बज गया। अब OUT के पास एक घर मिले, ढूंढ के ऋतिक दादा मिले, मेरा बंधु खुद ढूंढ के पूछ के गए। हम वहाँ जाके सब मंत्र ग्रहण किए। अब जब वो पूछे आप क्या कर रहे हैं, हम बहुत गौरव के साथ बोले। एक मन में ईगो था कि मैं IIT का ये हूँ वो हूँ, मैं अपने बारे में बोला। एक बार भी मैं उनको नहीं पूछा दादा आप क्या कर रहे हैं। सब मुझे खाना खिलाए, प्रसाद खिलाए। जब मैं गेट के पास आ रहा था, मैं उनको पूछा आप क्या करते हैं? बोले मैं रिटायर हूँ, मैं पहले IAS ऑफिसर था। तब मुझे महसूस हुआ देखिए एक सत्संगी जो है कितना उदार हो सकते हैं, कितना हम्बल हो सकते हैं। तो मैं आया, then I came back to Guwahati and I started doing meditations and then reciting the holy name and also doing my oblations, Ishtabhuti, every day spiritually, religiously, every morning. Almost 1 month had passed. My mind was still under unrest, highly unrest. My mind was revolting and my inner complexities and resisting evils were like withdrawing me, not allowing me to get peace of mind. मेरा मन में बहुत उतावला चल रहा था। 1 महीना हो चुका था, मेरे मन में बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा था। मैं तो सतमंत्र लिया, ठाकुर जी को तो मैं कभी देखा ही नहीं। अब मैं नहीं जानता था आचार्य देव कौन है, क्या है। उस समय में मन में जो इतना सारा प्रश्न चल रहा था, कब मिलेगा मुझे शांति और कब मेरा समाधान मिलेगा, मेरा जितना असुविधा का कब समाधान मिलेगा। 1 महीना हो चुका था, गुवाहाटी में था IIT में। अचानक कोई एक दोस्त मुझे खबर दिए आप तो सत्संगी हैं, सत्संग का जो गुरु है वो गुवाहाटी मंदिर में आए। हम दौड़ के गए और ये जो था उतावला था पूछने के लिए, क्या वहाँ मौका मिलेगा पूछने के लिए। आई वेंट देयर, तो गए तो पता चला कि 4th इनकारनेशन है, ठाकुर जी का जो 4th इनकारनेशन है, पूजनीय श्री बाबाईदार वहाँ पे आए हैं और नाट मंडप में नीचे बैठे हुए थे। हम भी जाके देखे, बहुत दिव्य चेहरा है, सुंदर चेहरा है और बहुत आलोक निकल रहा है। इतना भीड़ में जाके हम किसी भी तरह ठेल के जाके वहाँ पे साइड में बैठ के, अब वहाँ से कस्माकस शुरू हुआ। मन में प्रश्न था, पूछो मैं तो दीक्षा लिया, मेरा कब होगा वो उन्नत, कब होगा वो मिलेगा शांति। अब पूछूं ना पूछूं। पहले देख रहा था बहुत लोग आ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, मन में थोड़ा भय लग रहा है। अब ऐसा चेहरा देख के भय भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा शर्म भी आ रहा है कि मैं पूछने से बाकी लोग क्या सोचेंगे, शायद मेरे में कुछ भूल हो गया या पूछने से दीक्षा लिया, कब होगा मेरा समागम। अब इतने में मैं जाऊँ ना जाऊँ, फिर मैं वो नाम करने लगा। अब जैसे जैसे मेरे सामने जो बैठे थे एक एक करके धीरे धीरे प्रणाम करके उठने लगे और 5 मिनट के बाद और एक उठने लगे। मैं आगे गया। सिर्फ एक आदमी मेरे सामने बैठे थे और सामने पूजनीय बाबा के बैठे। अब हृदय में इतना कस्माकस और रोक नहीं पा रहा था। अभी इसी वक्त मैं जाके वहाँ प्रणाम करके पूछूँ, दादा मैं तो दीक्षा लिया हूँ, मेरा क्यों उन्नति नहीं हुआ। अब मैं उठ के जा रहा हूँ, ऐसे जस्ट उठा हूँ, इतने में एक आदमी, असमीज आदमी दौड़ के आया
आया एकदम प्रणाम करने के लिए, आके एकदम साष्टांग प्रणाम करके जोर जोर से बोला, दादा मैं तो दीक्षा लिया आसामी में, मुझे तो दीक्षा लूँ और एक को हुआ नहीं, अरे मैं तो दीक्षा लिया, मुझे कुछ भी आज तक नहीं हुआ कि कब होगा। अब मैं सोचा ये आदमी मेरा प्रश्न पूछ लिया, अब बहुत खुश भी लगा कि नहीं जाके भी मेरा प्रश्न पूछ लिया। अब अंदर चलने लगा कि अभी गुरु क्या उत्तर देते हैं, उसको जो उत्तर देंगे वो मेरे लिए उत्तर है। तो पूजने वाला उसको ऐसे देखे, वो एकदम अनस्टेबल था, हिल रहा था, गुस्से में भी था शायद। पूजने वाला बोले, आप कभी घर में कपड़ा धोते हैं? बोला जी हाँ, मैं घर में हर रोज़ कपड़ा धोता हूँ। अच्छा कैसे धोते हैं? मैं सर्फ में कपड़ा भिगो के रखता हूँ बाल्टी में, फिर क्या करते हैं, फिर ऐसे धो के उसमें भिगो के और टाइम रखता हूँ, फिर क्या करते हैं, मैं टैप खोल लेता हूँ, फिर क्या होता है, अच्छा पानी उसमें गिरता रहता है, फिर आप क्या करते हैं, जब अच्छा पानी गिरता रहता है, गंदा पानी भर के आता रहता है बाल्टी से, तब क्या करते हैं, तब साफ हो जाता है? बिल्कुल नहीं। वो बोला बिल्कुल नहीं, जब पूरा बाल्टी से गंदा पानी बाहर के आ जाता है और अच्छा पानी भर जाता है, तब कपड़ा साफ होता है, फिर मैं निचोड़ के सुखाता हूँ। बोले ऐसा ही है हमारा हृदय, जो ऐसे ही है, बहुत सारा जन्मगत संस्कार से लेके बहुत हमारा जो अपब्रिंगिंग है, हमारा जो पारिपार्श्विक जो समस्या लेके हमारा जो प्रवृत्ति बना है, सब अंदर ही भरा हुआ है। इतना कष्ट, इतना दुख, इतना भरा हुआ है। अब आप जब दीक्षा लिए हैं, सतमंत्र लिए हैं, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, अलाउ कीजिए, आप नाम करते रहिए, स्तुति करते रहिए, उनके साथ जुड़ते रहिए। अब अलाउ कीजिए, एक समय आएगा, किसी का 1 हफ्ते में आ सकता है, किसी का 1 महीने में आ सकता है, किसी को 1 साल भी लग सकता है, लेकिन ये जरूर ऐसा मुहूर्त आएगा जब आपका हृदय में अच्छा चीज़ भर जाएगा, तब आपका मन शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, कोमल भाव आ जाएगा। और उसी समय में इतना आनंद हुआ, मैं क्या मेरा प्रश्न का समाधान मिल गया। शायद मुझे अभी बहुत सारे पेशेंस का भाव रखना पड़ेगा, और मैं करता गया और बहुत ही अच्छा लगा। उसके 1 महीने के बाद ऐसे सिचुएशन हुआ, आई हैड टू गो फॉर रिसर्च, आई हैड टू गो टू इंस्टीट्यूट कॉल्ड CNRS इन पेरिस। आई स्टेड देयर, और मन में आया कि मैं YouTube में खोल के फिर प्रार्थना वहाँ से देख के प्रार्थना सीखते गया, रखते गया, और मुझे महसूस होता गया कि मैं पेरिस में हूँ, लेकिन मेरे चारों तरफ YouTube में देखता रहा गुरु भाई हारमोनियम लगा के, अभी जैसे इतना उदार भाव से प्रार्थना का माहौल चिंताधारा आता था, ऐसे ही प्रार्थना चल रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। 1 साल हो गया। जब वापिस आया तो पहली बार मुझे देवघर जाने का अपॉर्चुनिटी, सुयोग मिला, और हम देवघर में जा रहे हैं ट्रेन में, पहली बार ट्रेन में टिकट करके देवघर जा रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे साथ मेरे को पैसेंजर एक बहुत हट्टे-खट्टे आदमी थे। देखने में लगता है कि एक आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर है, बहुत सीनियर ऑफिसर है, बहुत वेल बिल्ड चेहरा है। अब मैं उनको पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं भी देवघर जा रहा हूँ। मैं कहा मैं भी पहली बार देवघर जा रहा हूँ। अच्छा आप पहली बार जा रहे हैं? तब अपना जीवन के बारे में कुछ मुझे 2 चीज़ें बताने लगे। बोले आप जानते हैं? मैं कहा मैं कौन हूँ? मैं कहा आप जरूर एक पुलिस ऑफिसर होंगे, IG DG ऐसे दिखते हैं, आपका चेहरा से दिखना। बोले मैं नहीं हूँ, मैं असम का एक टेररिस्ट था। उल्फा जानते हैं आप? उल्फा के बारे में सुने होंगे। मैं परेश बरुआ जो उल्फा का चीफ है, उसका राइट हैंड था, और मेरा हिट लिस्ट में, आर्मी का हिट लिस्ट में मेरा 2nd नंबर में था। एनी टाइम शूट एंड साइट ऑर्डर था मेरे ऊपर, देखने से इसको मार दिया जाएगा। आर्मी मुझे हमेशा ढूंढते रहते थे, कभी मुझे पकड़ नहीं पाते। अब बहुत सारे हम एक्सटर्शन किए हैं, बहुत सारा मर्डर किए हैं, दंगा हंगामा किए हैं ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ परेश बरुआ, द चीफ ऑफ उल्फा। अब बोले एक बार ऐसे हुआ हमारा लाइफ में, ऐसे ख़राब समय आया, असम के एक जगह में हम जा रहे थे एक, और कहीं से स्पाई का पहले से इंफॉर्मेशन चला गया था, आर्मी मुझे कॉर्नर कर लिया, एंड दे आर अबाउट टू चेस मी, अराउंड 200 मीटर्स के डिस्टेंस में था, एंड आई गॉट टू नो आर्मी हैज सर्कल्ड मी ऑल अराउंड, आई हैड नो चांस टू एस्केप। अब मुझे मॉरल मुख दिखने लगा। पहली बार मेरे पास में AK-47 राइफल था, और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरा जीवन थोड़े एक मुहूर्त में जाने वाला है। आर्मी मुझे दौड़ाते गए पास में। अब जब एक शूटिंग रेंज में मैं आ गया, गोली लगने वाला है, फायरिंग शुरू कर दी, मेरे एक पैर में लगा, बोले जस्ट स्पीच पास थ्रू माय लेग। अब इतने में बोले मैं जानता हूँ नेक्स्ट गोली मेरे छाती से भीतर में चला जाएगा, और इतने में क्या हुआ, मैं दौड़ते
देखा कि बहुत सारा लोग भीड़ में है और एक जगह प्रार्थना चल रहा है। और वो एक सत्संग, एक गांव में सत्संग, एक मंदिर है शायद, वहाँ प्रार्थना चल रहा था। मैं जाके, कोई उपाय नहीं मिला, जाके अंदर जाके छुप के बैठ गया और प्रार्थना चल रहा है। आर्मी अभी फायर नहीं कर सकते, वहाँ पब्लिक है, आर्मी चारों तरफ घेर के वेट करने लगे। प्रार्थना शेष हुआ, सब प्रणाम करने लगे और मैं भी नहीं जानता हूँ कौन है वो जो आदमी बोले। तो वो जाके प्रणाम करके अब उनके साथ मंदिर में घुस गए। मंदिर में घुस गए तो जाके शरणापन्न हो गए। तो एक पुजारी बोले, ओ आपको आर्मी ढूंढ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ईश्वर का, ठाकुर जी का शरणापन्न में आप सब वही रक्षा करेंगे। अब उनको लेके जो किचन है वो एक डेगची के अंदर उनको छुपा दिया। वहाँ बहुत सारे, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो आदमी बोले, आर्मी आए, एक हफ्ता रहे, उनको पता चला कि आसपास में कहीं दिस पर्सन हैज नॉट एस्केप, दिस पर्सन मस्ट बी इनसाइड दिस सत्संग मंदिर। वो हर जाके हर रूम चेक किए, हर चीज़ चेक किए, वो किचन में भी ढूंढे, हर डेगची में जाके, गन पॉइंट में जाके नॉक करके गए, आवाज़ आया कि नहीं ढूंढ के। एक डेगची छोड़ गए थे जिसके अंदर वो रह गए थे। तो आदमी एक हफ्ता वेट करके जब नहीं मिले, चले गए। वो आदमी वहाँ पे रहे, झाड़ू लगाने लगे। तो बोले, मैं हर रोज मेरा जीवन तो दान किए ये ईश्वर, और उनका शरणापन्न होने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। जब बोले तो वहाँ कोई बोले, नहीं हम, आप इच्छा करने से नहीं होगा, हमारा जो गुरु है, आचार्य गुरु है, वो जीवंत आदर्श है, वो देवघर में रहते हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, उनको अनुमति लेना पड़ेगा, जब वो बोलेंगे आप ले सकते हैं। वो गए, उनको अनुमति मांगे। आचार्य बोले, ऐसे नहीं, आपको जीवन दान दिए हैं, आप अगर 3 महीने, तुम अगर 3 महीने वही मंदिर में झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, मंदिर का उनका सेवा करोगे, अनवरत, एक दिन भी मिस्टेक नहीं होगा, अगर करके आओगे उसी दिन मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। वो 3 महीने किए, दीक्षा दिए। अब कैसे हुआ, उनका नाम कहाँ से मिट गया वो हिट लिस्ट से। अभी वो ऋतिक है, वो विवाहित है, एक मंदिर का इंचार्ज है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, प्राइवेसी। अब ऐसे जीवन का, अब वो सब बात सुन के मेरा मन में और उतावला होने लगा कि वो ईश्वर कौन है जो जीवंत रूप में है, उनका कब दर्शन होगा। मैं जब देवघर में पहुंचा तब नाट मंडप की तरह सब लोग जा रहे थे, मैं भी चलने लगा। अब मुझे कोई जानकार नहीं है, पहली बार आया हूँ। तो दूर से देखा कि वो नाट मंडप में बेड में एक ऐश्वर्य चेहरा में कोई बैठे हैं। उनका जब नज़र मुझे दूर से पड़ा, मुझे ऐसा लगा कि शायद यही ईश्वर है जिनको मैं जान से अभी ढूंढ रहा था। अब इतना, द आईज पोरिंग विथ अनकंडीशनल लव, शावरिंग विथ मर्सी, पिटी, ग्रेस, आई कैनॉट एक्सप्लेन यू। जो इतना मैग्नानिमस अटैचमेंट का, एक मैग्नेट की तरह अटैचमेंट में खींचता जा रहा था। मैं नाट मंडप की तरफ चलता गया, जैसे चलता गया, अब पास में जब दर्शन हुआ, उनका चक्षु देखा। अब जैसे मिरर में देखने से आपका मुंह में कहीं दाग है, आप देख पाते हैं, उनको देखने से मुझे महसूस होने लगा मेरे जीवन में क्या भूल हो रहा है, मैं क्या भूल कर रहा हूँ, क्या मेरा कठिनाई, मुझे सब देखने लगा। एक मन में, कॉन्शियस माइंड में एक अलर्टनेस शुरू हुआ। मैं वहाँ जाके बैठा, उनका संग करने लगा, वहाँ नाम करने लगा। जब नाम करते गया एंड यू विल नॉट बिलीव, उनको देख के ऐसे महसूस होने लगा कि शायद यही ईश्वर है जो जीवंत रूप में है। मैं कभी ठाकुर जी को ना फोटो में देखा था, ना कहीं पे देखा था। मैं पहली बार ठाकुर जी को जीवंत रूप में देखा, जो आचार्य गुरु है। अब उनको इतना दया, प्रेम है उनका आंखों में था। और you feel like let his actions and thoughts be yours. You start assimilating his actions and thoughts in your efforts. अब उनका हर कर्म, ध्यान, मन सब मेरे चरित्र में जैसे समागम हो रहा है, ऐसे महसूस होने लगा। अब मैं उनको एकदम दिल से नाम करते गया। It's like you are getting tuned to the earth and sky at the same time, and it's like आप जैसे मोबाइल है, मेरा शायद मोबाइल की तरह मेरा बॉडी था, इसमें सिम कार्ड भी था, बैलेंस भी था, लेकिन मेरे साथ नेटवर्क नहीं था। वो सिग्नल मैं परसीव नहीं कर पा रहा था, वो अनकॉन्शियस था मैं। अब जब उनका ट्यूनिंग में आता गया,
and my mind was in purest form of mind. I was able to think what is correct, what is wrong. I could see जीवन ईश्वर क्या है. I had seen वो रोम के वेटिकन सिटी में मैं सेंट पीटर्स चर्च में गया हूँ, वहाँ जीसस क्राइस्ट को देखा हूँ. छोटा में बड़ा, बड़ा में बड़ा, महावरम में, लखनऊ में मेरे दोस्त के साथ भी वहाँ पे मोर्चा में प्रोसेशन में भी गया हूँ. श्री जगन्नाथ मंदिर में पुरी में जाकर दर्शन भी किया हूँ. पहली बार ईश्वर को, पुरुषोत्तम को जीवंत रूप में देखा. एंड दैट इज द बिगिनिंग ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ माई लाइफ. ऐसे होते गया हम आए और वहाँ बहुत सारा घटना हुआ. हम गुवाहाटी आए और गुवाहाटी आके हमारे साथ यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे, हमारे साथ एक धीरे धीरे हम प्रार्थना अटेंड किए. हॉस्टल में एक उड़िया गुरु भाई थे, प्रदीप विश्वाल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहे थे. उनका रूम में रोज़ शाम को प्रार्थना हो रहा था. बीइंग ए फैकल्टी मैं भी जाने लगा हॉस्टल में. उनका पड़ोस में कानपुर से एक भाई थे, वो है वैभव गुप्ता करके हैं. वो आने लगे, वो आके देखते थे रूम में क्या हो रहा है शाम को प्रेयर में. वो धीरे धीरे बैठने लगे. आके पूछे क्या मैं बैठ सकता हूँ? बिल्कुल बैठ सकते हैं. वो धीरे धीरे बैठने लगे. अगले दिन देखे वो धोती पहन के आए, धोती खरीद के लिए सफेद, शायद ये सिस्टम है. वो बैठने लगे. उनको देख देख के और 2 लोग आए, 2 स्टूडेंट्स यहाँ से, वो पूरे हॉस्टल से. वो रूम में और जगह होने नहीं लगा. धीरे धीरे बारंडा में लोग बैठने लगे. अब वो बोले कि मुझे भी अगर अच्छा लग रहा है क्या करना होगा, वो भी दीक्षा लिए. अब हम इतना भाव लेके आए हैं, खूब ईश्वर को जीवंत रूप में दर्शन करके आए. हम बोले अब वो जो वैभव गुप्ता थे वो बीटेक किए थे, बीटेक करके एमटेक कर रहे थे. आप जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वो जानते हैं एमटेक के फर्स्ट ईयर में थे और सेकेंड ईयर का जस्ट शुरुआत है, प्रोजेक्ट कर रहे थे. इतने में क्या हुआ, उनको लेटर आया. बहुत पहले शायद कभी इंटरव्यू दिया हमें इसरो में साइंटिस्ट थे. एक ऑफर लेटर आया, अपॉइंटमेंट लेटर. बहुत पहले का 3-4 साल पहले का इंटरव्यू दिया हमें, आपको ज्वाइन करना होगा जॉब में इमीडिएटली. अब देखिए एमटेक सेकेंड ईयर में, उनका इच्छा है एमटेक डिग्री भी हो जाए. क्या पता 1 साल वेट करें, जॉब भी ज्वाइन कर लें. लेकिन जॉब में लिखा है 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइन करना है और बहुत कसमाकस में है, धर्म संकट में है. आके मुझे पूछे, मैं कहते देखो जॉब तो कभी भी मिल जाएगा, तुम एमटेक कंप्लीट करो, आगे पीएचडी करो. अब घर से फोन आ रहा है, नहीं जॉब, गवर्नमेंट जॉब, वो भी इसरो में, इमीडिएटली ज्वाइन करो. हम एक दिल्ली से जो गुरु भाई आए थे, वो आईएएस ऑफिसर हैं, उनका बेटा पढ़ रहा था, उनको भी पूछे, वो बोले नहीं आप पीएचडी कीजिए, एमटेक कीजिए, उसके बाद पीएचडी कीजिए. अब वैभव गुप्ता जी जो है बहुत द्वंद में है. अब उस समय में पूजनीय बाबा आए थे. अब हम जब कुछ समाधान नहीं मिला, हम सब लोग एकत्रित होकर बोले देखो गुरु आए हैं, तुम जाके पूछो, वो जो बोलेंगे वही होगा. लेकिन हमारे मन में था अभी गुरु क्या बोलेंगे. अब गए और लंबा लाइन में है. उनका जब टर्न आया, वो जाके पहली बार गुरु का दर्शन हो रहा है, वो जाके बोले दादा मेरा ऐसा ऐसा है. भाई ने बोले इस मुहूर्त में तुम्हारे मन में जो चल रहा है वही होगा. अब हम भी सोचने पड़ेंगे. अब बाहर आए हम, भैरव जी आपका मन में क्या चल रहा है? सर मेरे मन में तो दोनों चीज़ चल रहा है, एमटेक भी हो जाए, नौकरी भी हो जाए. अब हम सोचे ये तो असंभव है, इलीगल है, अनएथिकल है, कभी भी असंभव है. अगर बिना बता के वो जॉब में ज्वाइन करेंगे, एमटेक इज गोइंग टू बी टर्मिनेटेड. अगर एमटेक करके जॉब ज्वाइन करके कुछ करेंगे तो जॉब भी टर्मिनेटेड हो जाएगी. आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जाके जॉब ज्वाइन करके आ गए बिना बता के. आई.टी. गुवाहाटी में जॉब ज्वाइन करके आ गए. 1 महीने जॉब किए, वहाँ से ईमेल लिखे गाइड को, माई हेल्थ इज नॉट वेल, आई हैव कम टू कानपुर. तब वहाँ से फिर छुट्टी लेके आ गए. अब थीसिस का टाइम आ गया, रिसर्च का एक्सपेरिमेंट किए. 2 महीना हो गया, इसरो घर में लेटर भेजने लगा. अब बोले कि मेरे ईश्वर बोले हैं दोनों चीज़ होगा. मैं क्या ऐसे कैसे होगा? मैं ईश्वर बोले हैं दोनों चीज़ होगा. तो उनका वाक्य सब लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि वो वाक्य सिद्ध पुरुष है, उनका बात इधर उधर नहीं होगा. तब वो लेटर रिटर्न गया, माँ को बोले लेटर रिसीव मत करना. लेटर रिटर्न गया, वहाँ लास्ट नोटिस आ गया, यहाँ थीसिस जमा करके वहाँ चले गए. फिर जॉब करने लगे, बहुत गाली सुने, जो भी है मेरे ईश्वर बोल रहे हैं, गाली भी सुन लेते हैं. अब जॉब भी चलने लगा, यहाँ डिग्री भी हो गया. पहली बार ऐसे इंस्टेंस में देखा जब जो इच्छा है ईश्वर कैसे उसको पूर्ण करते हैं. हो गया. फिर धीरे धीरे और भी स्टूडेंट जुड़ते गए. अब एक अभी घोष करके एक लड़का बीटेक में ज्वाइन किया. आप लोग जानते हैं जो हमारा आनंद बाजार का इंचार्ज है, उनका नाती है.
तो अभी घोष है, अभी घोष बीटेक में ज्वाइन किया, उसका रैंक बहुत कम में था, गुरु भाई है, बहुत कम में था। वो थियोरेटिकल फिजिक्स में रैंक के हिसाब से बीटेक मिला। उसके बाद एक साल पढ़ के बहुत कष्ट किया, एक साल उसका प्रमोशन हो गया, उसको चांस मिला, टॉप 10% को स्विच ओवर करने के लिए चांस मिलता है, तो उसको मिला। वो कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, वो लिया थियोरेटिकल कंप्यूटिंग, मैथमेटिकल कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में वो लिया। आप बिलीव नहीं करोगे, 4 साल में वो ऐसे ऐसे एलिवेट होता गया। 4 साल के बाद जो गोल्ड मेडल मिलता है, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, वो अभी घोष को मिला। अब जितने सारे इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में वो टॉप आया। अब एग्ज़ाम का 1 महीने पहले हमारा सत्संग का पहला सेमिनार हुआ IIT गुवाहाटी में। हम अभी घोष को बोले तुम्हें बोलना है। अब और कोई स्टूडेंट होता, सर 1 महीना एग्जाम है, हम स्टूडेंट तो सारे 1 महीने पहले पढ़ते हैं, कभी तो पढ़ते नहीं है, 1 महीने पहले पढ़ते हैं। उस दौरान अभी घोष आया। हम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, कोकराझार CIT, आसाम यूनिवर्सिटी, तब तेजपुर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कम से कम 6-7 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहाँ समागम हुए थे। और सबका था, ये बहुत सारे प्रोफेसर थे, कुछ ऋतिक भी थे, सबका है शायद प्रोफेसर कोई ऋतिक पहले बोलेंगे। फर्स्ट स्पीकर वॉज अभी घोष। अब उसका सब सेल्फी ले रहे थे। जब अभी घोष बोला, लुक, इफ यू वांट टू डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। यू थिंक आई एम द इंटेलिजेंट, आई एम नो इंटेलिजेंट। जैसे Jews सब समझते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट द पर्सन फ्रॉम इजराइल हु इन्वेंटेड द पेन ड्राइव एंड दैट पर्सन हैड टोल्ड मी people think Jews are intelligent among all human race. It is not like that. आपका अगर इच्छा है आप इंटेलिजेंट बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए ईश्वर का दया चाहिए। आई डोंट नो विच गॉड ही मेंशन। तो अभी ने वही बोला कि अगर आपको सक्सेस लैडर में चढ़ना है, जो विद्यार्थी है पढ़ते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अगर चढ़ना चाहते हैं सक्सेस में, यू कैन सक्सीड इन योर लाइफ बाय स्क्रोलिंग द ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक। यू हैव टू डू शेयर हार्ड वर्क। आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा और ईश्वर के साथ जुड़ते रहना होगा। वो बोले कि आप लोग अगर 12 घंटा में जो पढ़ के जो समझ पाते हैं, मैं 4 घंटे पढ़ के वही कर पाता हूँ। क्यों? बाकी टाइम मैं उनका नाम करता हूँ। मैं जानता हूँ शॉर्टकट क्या है। वो शॉर्टकट आप अगर करना चाहेंगे, आप और मेरे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी घोष के और स्टूडेंट्स जुड़ते गए। अब समय नहीं है, मैं एक लास्ट इंसिडेंट बताना चाहूँगा। हम जापानीज यूनिवर्सिटी है, गिफू यूनिवर्सिटी, वेयर आई वर्क एज एन एडजंक्ट प्रोफेसर। हमें हर साल 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए जहाँ के पढ़ाना पड़ता है। 2014 का बात है, हम गए थे। वो पढ़ाने के समय में हमें रिसर्च भी करना होता है। मेरा जो होस्ट थे वो बोले कि एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करना था, रिसर्च एक्सपेरिमेंट। मेरा होस्ट प्रोफेसर बोले यू हैव टू वर्क विद दिस PhD बॉय। मैं कह रहे मेरा मन में फिर भी थोड़ा ईगो रह गया था। मैं प्रोफेसर हूँ, IIT से हूँ, एंड दिस माई होस्ट इज टेलिंग आई हैव टू वर्क विद दिस बॉय। ओके, हम तो ठाकुर जी का शरणापन्न है, उनका नियम पालन करेंगे, कोई बात नहीं, उसके साथ काम करेंगे। एंड दैट बॉय यूज्ड टू बी सो रफ बिहेविंग, यू कैनॉट इमेजिन। क्यों? मैं उसका हिस्ट्री पता करने लगा। फादर मदर सेपरेटेड है। मदर वॉज एन कोरियन, फादर वॉज जापानीज, मदर वॉज ए क्रिश्चियन, फादर वॉज ए बुद्धिस्ट। दे हैव बीन सेपरेटेड। ओनली चाइल्ड, मन में रिवोल्ट है। कोई माँ बाप उसको देखते नहीं है, बचपन से छोड़ दिए हैं। गवर्नमेंट के सपोर्ट में स्कॉलरशिप में पढ़ा है। मन में बहुत गुस्सा है माँ बाप के अगेंस्ट में। हर आदमी को देखते उसे गुस्सा आता है। एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन दैट लैब वाज ओयामा, दैट बॉय। कैसे अप्रोच कैसे करेंगे? मैं जैसे पहला दिन जब अप्रोच किया, आई वॉन्ट टू लर्न दिस टेक्निक फ्रॉम यू। हु द हेल यू आर आस्किंग टू मी? यू आर इंडियन, गो बैक टू योर कंट्री। यू थिंक आई एम गोइंग टू टीच यू दिस टेक्निक? बहुत खराब गाली दिया। मैं कहा, मन खराब हुआ। क्या चलो सेकेंड डे भी ट्राई किया, वो भी गाली खाया। 3rd डे 4th डे 1 वीक हो गया, मुझे समझ में नहीं आया, मैं कुछ रास्ता नहीं देखा। मैं क्या किया, रूम में आया, जो गेस्ट हाउस में रहता था, रात को बहुत आचार्य का फोटो रखा था, बाबा का फोटो रखा था, सत्यानुसन रखा था। मैं अचानक उड़िया सत्यानुसन, इंग्लिश का सत्यानुसन रखा हुआ था, एकदम खोल के, कहाँ समाधान है, खोल के कैसे इसको हैंडल करूँ, और सत्यानुसन खोल दिया। लिखा है love which doesn't nurture the growth, life and growth is witchy in character. Okay? इसका मतलब क्या है? अगर मैं प्यार, जो प्यार उसको दे नहीं सकता हूँ, तो मेरे अंदर में witchy कैरेक्टर ही रहेगा।
तो इसका मतलब उसके अंदर में प्यार जगाना होगा। मैं अगले दिन गया, सोचा अब मुझे एक चीज़ ध्यान आया, देवघर में पूजने बाबा एक बार बोले थे, जेफरी डा जो अमेरिका के हैं, उनका पड़ोसी बहुत कुत्ता को लेके बहुत भूख ये कर रहे थे, और वो डाला भेजे थे तो वो समाधान हुआ था। मैं क्या उसको इन्वाइट किया, आई वेंट, आई टोल्ड नो, आई हैव नॉट कम टू लर्न फ्रॉम यू टुडे, आई हैव कम टू इन्वाइट यू। यू वांट टू इन्वाइट मी फॉर व्हाट? an Indian dinner, Indian curry I am going to prepare, I am going to invite you for Indian dinner. Really? You want to invite me? But I don't think that I am going to teach you. No. आपको खाली इनवाइट करने के लिए बुलाया। मैं उनको इनवाइट किया और बहुत गुस्से में रात को 11 बजे आया उस दिन। मैं बहुत सारा जो व्यंजन बना के सब रखा था और उसको खिला रहा हूँ, वो खा रहा है, खाना हो गया। अब वो खाना खाने से मैं जस्ट खत्म हुआ है, देखा आचार्य देव का फोटो रखा है, बाबा देव का फोटो रखा है, सुंदर करके सजा हुआ है, और बोले हु इज दिस पर्सन, इज ही योर ग्रैंडफादर? मैं कुछ नहीं बोला। द नेक्स्ट पर्सन, इज दिस पर्सन इज योर फादर, योर ब्रदर? मैं कहा, ही इज मोर देन माई ब्रदर। व्हाट डू यू मीन बाय मोर देन माई ब्रदर? हु इज ही? इज योर फादर? ही इज मोर देन माई फादर, ही इज सुप्रीम फादर। तो कौन है? हु इज सुप्रीम फादर? मैं कहा, ही इज गॉड, लिविंग गॉड। कम ऑन, I don't believe there can be living God. God sleeps in the rock. He said God sleeps in the rock. तो मैं तो समस्या में पड़ गया। मैं कहा नहीं, गॉड भी लिविंग में है, वो भी जीवंत में है। Then immediately he told me, can you show me God is living? If you cannot show me, I am going to slap you. तो एकदम भय में कंपन हो गया, वो इतना गुस्से में था। You have to show me God right now. मैं एकदम चकित हो गया, मैं कुछ उपाय नहीं दिख रहा। मैं कहा ओके, मैं जो सफ़ेद टावल था मैं बिछा दिया नीचे फ्लोर में, वुडन फ्लोर था। मैं कहा तुम बैठो, मैं यहाँ बैठता हूँ, आमने सामने बैठ के। मैं कहा अभी मैं मेरे जो लिविंग गॉड है उनको मैं पुकारूँगा, आह्वान करूँगा, वो सब मंत्र में पढ़ूँगा। और तो मैं वो बोला मैं क्या करूँगा? मैं कहा तुम आँख बंद करके उनके बारे में सोचो, फिर क्या होगा? मैं जब खत्म होगा वो तुम्हें दिखेंगे। मैं जानता हूँ वो मुझे पिटने वाला है। मैं खुद बोल तो दिया, मेरे अंदर में इतना विश्वास नहीं था कि सच में वो दिखेंगे। गया 5 मिनट गया, 10 मिनट गया, 15 मिनट हो गया। अब 15 मिनट जब हो गया, मैं आँख खोला बीच में, मैं देखा उसका आँख बंद है, वो चुपचाप बैठा है। मैं कहा कुछ तो अभी होने वाला है। 20 मिनट हो गया, जब मैं आँख खोला उसका आँख खुला हुआ है, मुझे देख रहा है। आई वॉज अबाउट टू एक्सपेक्ट, मैं कहा अभी उसका रिएक्शन क्या होगा। बहुत शांत में बैठा है, मुझे मारेगा या कुछ गाली देगा। डू यू नो व्हाट ही टोल्ड? क्योंकि जब आपका आँख बंद था, मैं आँख खुला, तो आपके और मेरे बीच में आपके जो सुप्रीम फादर है वो सब बीच में खड़े थे और मुझे देख रहे थे। यू आर राइट, भगवान जीवन में है, गॉड इज लिविंग। द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज God is not sleeping in the rock. God doesn't dream in the plant, doesn't steer. God dreams in the plant, God steers in the animals, and God awakens in human. Jagad.